आप ये बोल दीजिए ना कि हम नहीं देंगे। मंत्री बनने के लिए ही मैंने तिपरा मोथा शुरू किया होता तो मैं डायरेक्टली बीजेपी ज्वाइन कर लेता। आईपीएफटी ने जो गलती की वो गलती मैं नहीं करनी, और सौदागर को भी मैंने ही ओमपी से अपने हाथ से चुन के, सौदागर तो कोई বিধানসভাকে পবিত্র করার জন্য তিনি গঙ্গা জল ছিটিয়েছিলেন। এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন? सुदीप सिंह बीजेपी का एमएलए कर रहा था अपने मोबाइल फ़ोन में देखकर, उससे असेंबली का गरिमा नीचे नहीं गया। সরকারি যারা কর্মচারীরা রয়েছে তাদের একটা অভিযোগ রয়েছে, তারা সঠিক সময়ে তাদের বেতন পাচ্ছেন না। हम आपके एमडीसी और एमएलए को खरीदने की कोशिश करेंगे। त्रिपुरा सिंह के खिलाफ নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8-এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। প্রতিনিয়তই আমরা দেখতে পাই রাজনীতিতে বিশেষ কিছু বিষয় নিয়ে জ্বলন্ত থাকে এবং রাজনীতি একেবারে উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে। আজকের দিনে এডিসি এলাকাকে নিয়ে বা পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে আমরা খোলাসা তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমাদের সাথে রয়েছেন তিপ্রাসা জনগণদের কাছে জনপ্রিয় বুবাগরা, তার পাশাপাশি তিপ্রা মথা অর্থাৎ রাজ্যের একটি জনপ্রিয় দল তিপ্রা মথার যিনি চেয়ারম্যান রয়েছেন, যিনি সুপ্রিমো রয়েছেন, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। স্যার, প্রথমেই স্বাগত আপনাকে ত্রিপুরা নিউজ 8-এর পর্দায়। স্যার, প্রথমেই যে বিষয়টি জানতে চাইব, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তিপ্রা মথা দলের যে দাবিকে নিয়ে দলটিকে শুরু করা আপনাদের, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের এই দাবি আজকের দিনে কতটুকু এগিয়েছে? কেননা আমরা বেশ কিছুদিন ধরে দেখতে পেয়েছি এই বিষয়টাকে নিয়ে ইন্টারলকিউটার একটা শব্দ উঠে এসেছিল। তার পাশাপাশি যিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রয়েছেন অমিত শাহ, ওনার সাথে আপনি অনেকবার কথোপকথন হয়েছে। তার পাশাপাশি অমিত শাহ আপনাকে আশ্বাসও করেছিলেন বা আশ্বস্তও করেছিলেন। তারপর আজকের দিনে এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের কী স্ট্যাটাস রয়েছে? पूजा, ये जो आपने सवाल मुझसे पूछा है ये आप होम मिनिस्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं होम मिनिस्टर ने जो मुझे कहा या जो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट विजय कुमार रंखोल, एमएलएज, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश देबबर्मा, ईएम्स, सीएम को बताया है, वो बात अब हम लोग पब्लिक को नहीं बोलेंगे। हम लोग एक बात समझ चुके हैं कि जब तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं रखेंगे हमारे डिमांड के लिए, ये लोग अपना ही टाइम लेंगे। तो हमारा जॉब है कि हम अपने कम्युनिटी के बारे में बात करें, हमारा कॉर डिमांड के बारे में बात करें और आंदोलन स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक हम प्रेशर में नहीं रखेंगे इनको, कोई सीरियसली जल्दी काम नहीं करेगा। और ये बात एकदम क्लियर हो चुका है, इंटरलॉक्यूटर हो, क्योंकि नोटिफिकेशन भी निकला था, तब उसके बाद फ़ोन आया कि मणिपुर में प्रॉब्लम है, जो भी है। अब लास्ट टाइम भी 1 तारीख को मीटिंग हुई, उनको जो बोलना था उन्होंने मेरे सब लीडर्स को बताया, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम ग्राउंड में एजिटेशन या मूवमेंट नहीं करें तो वो प्रेशर और दबाव नहीं रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, और जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर दबाव नहीं रहता वो कुछ करता नहीं। স্যার, বর্তমানে আমরা যদি দেখি যে এডিসি এলাকায় জনপ্রিয় দল রয়েছে তিপ্রা মথা, রাজ্যে মুখ্য বিরোধী দলের তকমায় রয়েছে তিপ্রা মথা এবং তিপ্রা মথার যিনি বিরোধী দলনেতা রয়েছেন অনিমেষ দেববর্মা। বর্তমানে রাজ্যে ত্রয়োদশ ত্রিপুরার যে বিধানসভা অধিবেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, অধিবেশন বসে এবং সেই অধিবেশনে আমরা দেখতে পাই গতকাল বিশেষভাবে সেখানে যাদবলাল যিনি বিধায়ক রয়েছেন, উনার একটি বিষয়কে নিয়ে অনেকটাই উত্তপ্ত ছিল বিধানসভা মহল এবং সেখানে বিরোধী যে পক্ষ ছিল তারাও বিরোধিতা করেন এবং তার পাশাপাশি কিন্তু বাজেটও সেখানে পেশ হয়েছে। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে 27,654 কোটি টাকার বাজেট পেশ হয় এবং তার মধ্যে 611.3 কোটি টাকার ঘাটতি সেখানে দেখা গেছে। আমরা যাদবলাল নাথের বিষয়টিতে বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখি, কিন্তু বাজেট যে পেশ করা হয় তার বিষয়ে আমরা বিরোধিতা করতে দেখিনি, বা আমরা যদি বলি যে সেই বিষয়টাকে নিয়ে বা বাজেটের বিষয়ে বিরোধিতা করতে দেখা যায়নি বিরোধী পক্ষকে, কি কারণে? তবে কি সরকার পক্ষের যে বাজেট পেশ করা তাকে আপনারা সমর্থন করেছেন? वी हैव नॉट सपोर्टेड द बजट। मंडे को फिर से जब असेंबली शुरू होगा आप हमारा पोजीशन देख लेंगे। हम लोग गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हैं। आपने 27,000 करोड़ का बजट देखा, आप जानते हैं कि एडीसी को कितना पैसा मिला है? 672, लेस देन 2%। एडीसी 68% ऑफ त्रिपुरा है, 35% ऑफ द पॉपुलेशन एडीसी के अंदर रहता है, हमें 2% बजट मिला गया।
क्यों? सैलरी में 90% पैसा चला जाएगा। 30+ डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, उसमें हम 40-50 करोड़ में क्या काम करेंगे? तो गवर्नमेंट ने जो खुद भी वादा किया था इलेक्शन के टाइम, खुद के मैनिफेस्टो में, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो हाउ कैन वी एग्री विद द बजट? ये जो बजट प्रेजेंट किया गया है, ये आप मंडे में देखेंगे कि हम इनका पूरा कागज़ को देखकर, स्टडी कर कर, डाइसेक्ट कर कर, एज कंबाइंड ऑपोजिशन ये गवर्नमेंट को हम एक्सपोज करेंगे कि उनका बजट एक्चुअली कुछ नहीं है। বিরোধী দল হিসাবে আপনারা সোমবারে তিপ্রাসা জনগণদের জন্য কি ডিমান্ড রাখতে চলেছেন অধিবেশনে? वो आप मेरे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से पूछ लीजिए। हमारा पॉइंट वेरी क्लियर है। असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फाइट करेगा, ग्राउंड में मैं फाइट करूँगा, हमारा पार्टी फाइट करेगा। और हमारा पार्टी जो बना है वो एक मूवमेंट से बना है। ये मूवमेंट है ग्रेटर तिपरा लैंड। IPFT भी जो बना वो एक मूवमेंट से बना फॉर तिपरा लैंड। आज आप देखेंगे कि IPFT ने जो गलती किया वो गलती मैं नहीं करने वाला। बिना अपने कम्युनिटी को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देकर, ग्रेटर तिपरा लैंड का राइट देकर अगर हम सरकार में बैठ गए तो हमारे लोग का दिल टूट जाएगा और हमें कोई विश्वास नहीं करेगा। जो गलती NC देव बर्मा ने किया वो गलती मैं नहीं कर सकता। विदाउट गेटिंग इन राइटिंग आई विल नॉट सिट इन द गवर्नमेंट विथ BJP। চলতি বছরের যে অধিবেশন তার প্রথম দিনই আমরা দেখতে পাই যে বিধায়করা ওয়াকআউট করে নেয় এবং 5 জন বিধায়ককে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। তার মধ্যে আমরা তিপ্রামথার নেতৃত্বদের অনেকটাই কালকে বিরোধিতা করতে দেখেছি একটি বিষয়কে নিয়ে, এবং সেখানে বিশ্বকেতু দেববর্মা বা আমরা যদি বলি নন্দিতা রিয়াং এবং রঞ্জিত দেববর্মা, তাদের আমরা বিশেষ পদক্ষেপ দেখতে পাই এবং তাদেরকে সে কারণে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন? सस्पेंड तो मिस्टर नाथ का भी होना चाहिए था, जो अपने मोबाइल फ़ोन में ऑब्सीन कंटेंट देख रहा था। आई डोंट वांट टू से इट, आप यू आर अ लेडी योरसेल्फ, आई डोंट वांट टू से समथिंग विच इज़ एम्बैरेसिंग। सस्पेंड तो उनका भी होना चाहिए था ना। हमने तो चिल्लाया, हमने तो शायद टेबल के ऊपर खड़ा होकर उन्होंने कुछ चिल्लाया। ठीक है, अगर आपको वो ख़राब लगा तो जो BJP का MLA कर रहा था अपने मोबाइल फ़ोन में देखकर, उससे असेंबली का गरिमा नीचे नहीं गया, उससे असेंबली का नाम छोटा नहीं हुआ। तो जो कांच के घर में रहते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर मत फेंकें, क्योंकि उनको भी स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, वो MLA क्यों नहीं आया कल असेंबली में? क्या वो बीमार है? शर्म से नहीं आ सकता क्योंकि गिल्टी है। स्पीकर ने अभी तक डिसीजन क्यों नहीं लिया? अगर आप रूलिंग गवर्नमेंट से हैं तो आपको छूट मिलेगा, और अगर आप ऑपोजिशन से हैं तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। तो पब्लिक भी देख रही है ना कि कौन न्यूट्रल है, कौन फेयर है और कौन अनफेयर है। और ये लोग सब पूरे ज़िंदगी पावर में नहीं रहने वाले। पावर सबका आता है, जाता भी है। जब जाएंगे तब इनको मालूम पड़ेगा कि जब इनके पास अच्छा, देखिए CM इज़ ए जेंटलमैन, सब लोग बोलते हैं कि CM जेंटलमैन है, तो CM को भी तो लगता होगा कि मेरा ही MLA ये कर रहा है असेंबली में, उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? कि उनके ऊपर प्रेशर है कि नहीं ना करे? ये सब सवाल है। BJP के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो उनका अंदर पार्टी का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स है। কাল বিধানসভায় অধিবেশনে আমরা দেখতে পাই একটি নতুন বিষয়, সেখানে বিরোধী দল থেকে একজন নেতৃত্ব, কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব সুদীপ রায় বর্মন, আমরা দেখতে পাই বিধানসভাকে পবিত্র করার জন্য তিনি গঙ্গা জল ছিটিয়েছিলেন। এই বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন? मैंने सुदीप से कल रात बात किया। सुदीप का एक स्टाइल है, उसने गंगा जल से किया, वो सुदीप का पॉलिटिकल स्टांस है। लेकिन सुदीप इज़ सुदीप हैज़ बिन seasoned MLA, लेजिस्लेटर, एंड मेरे संग भी काम किया है सुदीप ने। हम लोग कांग्रेस में एक साथ थे, तो वो उनका स्टाइल है। लेकिन जो उसका मैसेज था वो गलत नहीं था कि जो लास्ट असेंबली सेशन में हुआ है
कि एमएलए ने ऐसा कांड किया कॉट ऑन कैमरा, तो उसके अगेंस्ट तो एक्शन लिया जाना चाहिए था। अगर नहीं लेंगे तो मतलब कि घर का नेम असेंबली का गरिमा गिर गया है। तो सुदीप ने जो किया उसने किया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। सुदीप ने जो किया उसने किया। আমরা যদি বলি অতি অল্প সময়ে এডিসি এলাকায় পাহাড়ি অঞ্চলে জনপ্রিয় দল তিপ্রামথা এবং ক্ষমতায় তিপ্রামথা, সরকারি যারা কর্মচারীরা রয়েছে তাদের একটা অভিযোগ রয়েছে, তারা সঠিক সময়ে তাদের বেতন পাচ্ছেন না, এবং এই বিষয়ে আপনাকে আমরা দেখতে পাই। आप मंडे में देखेंगे पूजा, यही बात उठाया जाएगा। आप डेवलपमेंट के लिए फंड्स रोक सकते हैं, चलिए आपने डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड नहीं किया, आपने फ्यूचर स्कीम्स के लिए फंड होल्ड कर दिया, आप सैलरी होल्ड करते हैं, तो आपका क्या मतलब है कि बिकॉज आपने तिप्रामथा को वोट किया, बिकॉज आपने हमारे पार्टी को वोट नहीं किया, आपको सज़ा दिया जाएगा, इसके लिए आपका फंड्स हम नहीं भेजेंगे क्योंकि आपको सज़ा मिलना चाहिए। आपने ये पाप कैसे किया कि आपने बीजेपी को वोट नहीं किया, तिप्रामथा को वोट किया। और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके घर में फैमिली है, इनके बच्चे हैं, इनके माँ हैं, इनके परिवार है, इनका भी एक प्रेशर रहता है, प्रॉब्लम रहता है। आपने ये करके अपने ही त्रिपुरा के जनता को सज़ा दिया है। और ये मैंने देखा है बहुत पॉलिटिक्स में। आप पॉलिटिक्स में मुझे सज़ा दे दीजिए, मैं विपक्ष में हूँ, पॉलिटिशियन को के खिलाफ लड़िए, आम जनता को प्रॉब्लम में मत लाइए। आम जनता एक बार आपको वोट करता है, एक बार किसी और को कर सकता है, एक बार किसी और को कर सकता है, वो उनका अधिकार है। लेकिन आपका एक दायित्व बनता है कि एज अ गवर्नमेंट आप सबको बराबर मानकर चले। लेकिन यहाँ में ये नहीं हुआ। आप देखेंगे मंडे में ये बात हम उठाएंगे। और ये जो डिले इन रिलीज ऑफ फंड्स है, ये बेसिकली हमें आर्म ट्विस्ट करने का कोशिश किया जा रहा है कि आप आकर हमारे संग बैठ जाओ। आप बैठ जाएंगे तो सब चीज़ स्मूथ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप नहीं आओगे तो हम आपका फंड्स रोक देंगे। आप अगर नहीं आओगे तो हम आपके एमडीसीज और एमएलएस को खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात ये, সরি ফর ইন্টারাপ্ট ইউ, একটা বিষয় রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে যিনি মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন উনি বলেন যে এডিসির জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে সেটা সাফিসিয়েন্ট রয়েছে, এ বিষয়ে কি বলবেন? वेल मुख्यमंत्री जी इज़ न्यू चीफ मिनिस्टर। जैसे मैंने पहले भी कहा, जेंटलमैन है, लेकिन उनके पास सब इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। अगर उनको ये सफिशेंट लगता है तो आप, जैसे मैंने कहा 68% ऑफ त्रिपुरा इज़ एडीसी, आपने 2% फंड्स दिया है। 35% पॉपुलेशन रहता है, आपने 2% फंड्स दिया है। इसका क्या मतलब है? और जो फंड्स दिया है 90% सैलरी में चला जाएगा, तो आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे? आप नए लोगों को क्वालिटी टीचर्स को नौकरी कैसे देंगे? आप नर्सेज को नौकरी कैसे देंगे? आप पानी का समस्या कैसे हल करेंगे? आप शिक्षा का समस्या कैसे हल करेंगे? आप रोड कैसे बनाएंगे? बिजली का प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक करेंगे? ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम कैसा ठीक करेंगे? तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना के रखा है। और अब तो ये भी हो गया है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी टाइमली पैसा नहीं आता, जबकि सब गैस का जो टैक्सेस है वो हमारे एडीसी एरिया से निकलता है। सब पेट्रोलियम, ऑयल, गैस सबका, ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया सबका हमारे एरिया से निकलता है, तभी भी हमें टाइम में मिलता है वो पैसा? नहीं मिलता। क्यों? ये तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना। ये तो आपने हमें पूरा अपने ही राज्य में हमें एक्सप्लॉइट करके, हमको नीचे गरीब रखकर आप आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कैसे होगा ये? तो सीएम साहब इज़ अ ऑनरेबल मैन, ही इज़ अ जेंटलमैन। मैं उनके खिलाफ पर्सनली, ना मैंने पिछले सीएम के खिलाफ कुछ बोला, मैं ना इनके खिलाफ कुछ बोलूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने भी इनको कहा है कि ये सफिशेंट है, उन्होंने ठीक पिक्चर दिखाया है। इट इज़ एब्सोल्युटली इनसफिशिएंट फंड्स। যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে ককবরক ভাষা, রোমান লিপির দাবি আমরা দেখতে পাচ্ছি বহুদিন ধরে চলে আসছে। আপনি ময়দানে নেমে তার জন্য আন্দোলন করতেও আমরা দেখেছি। সরকার পক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিটিতে রয়েছে ডক্টর অতুল দেববর্মা, বিরালা ত্রিপুরা এবং সেখানে রয়েছেন অপরজন রয়েছেন সেখানে ধীরেন্দ্র কোলই। এবং আমরা দেখতে পাই যে এই তিনজনের যে কমিটি, তার মধ্যে কনভেনার ডক্টর অতুল দেববর্মা।
আপনাদের দলেরই কিছু নেতৃত্বরা রয়েছেন, তাদের সাথে আমরা কথা বলি। তারা বলে বা তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল সেখানে যে এই তিনজনই নাকি এই যে কমিটির জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয়। আপনি এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন যে এই কমিটি? I have no problem. Atul Dev Burma is RSS member, विश्व हिंदू परिषद RSS member. बीरा लाल भी शायद RSS से है और मिस्टर कॉलोई भी शायद स्कूल टीचर है, जो भी है वो भी है. लेकिन अगर आपको एक कमेटी बनाना है तो आप रखिए ना, RSS से किसी को रखिए, नो प्रॉब्लम. आप नॉन RSS बैकग्राउंड से भी किसी को रखिए, कांग्रेस के बैकग्राउंड से भी किसी को रखिए, कम्युनिस्ट की लाइन से भी किसी को रखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज में रोमन स्क्रिप्ट में बात करें उसको भी रखिए. लेकिन आप तीनों को एक ही बैकग्राउंड से हैं, एक ही पार्टी से हैं, एक ही सिंपथाइज, और तब आप बोलेंगे कि ये कमेटी बनेगा तो आपको मालूम है कि इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा. जो मालिक बोलेगा वही करेंगे. लेकिन मैक्सिमम तिपरासास want to write Kokborok in, or I would personally not use the word Kokborok, I would like to use the word Kokti Prasa, because the Riang dialect is slightly different, the Jamatia dialect is slightly, there are variations. So Kokti Prasa is a better word. Would like to write it in Roman script, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम लोग इंग्लिश सीखें. आप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कल इंग्लिश सीखकर कंप्यूटर सीखे, अच्छे नौकरी में मिले. आप चाहते हैं कि हम लोग बस पूरी ज़िंदगी बकरी सुअर बैल पालकर जंगल में रहे, आदिवासी जैसा. आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा और हमारा बच्चा एक संग एक ही स्कूल में जाए. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस में लिखा है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा है, उसमें आपको आपत्ति नहीं है. तो हमारा जो भाषा है हमको डिसाइड करने दीजिए. CBSE में हमको रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है, हमें आप ऑप्शन दीजिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बंगाली को हटा दीजिए या देवनागरी को मत रखिए, ऑप्शन रखिए ना. हमारे लोगों को चूज़ करने दीजिए. आप वो ऑप्शन भी नहीं देंगे. जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपको चॉइस करने का एक राइट मिलता है ना कि मैं ये देखूंगा या मैं ये लूँगा या मैं लूँगा. आप वो ऑप्शन भी नहीं देते. आप तो मालिक बन के रहे ना, आप तो भगवान बन के हमारे ऊपर बैठे हैं. तो ये कमेटी बनेगा, ये मेकअप कमेटी होगा. कमेटी 4-5 बार मिलेगा और अपने ही लोगों से बात होगा और बाद में रिपोर्ट दिया जाएगा. वो असेंबली में टेबल होगा, फिर से लोग अपोज करेंगे, फिर से कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा तो वेरी गुड, क्योंकि कुछ नहीं होगा मतलब कि तिपरासा लोग अभी भी स्क्रिप्ट में कोई फाइनलिटी नहीं आएगा और वो पीछे रहेंगे. ये लोग सोल्यूशन ही नहीं चाहते हैं. आप ये बोल दीजिए ना कि हम नहीं देंगे, आप ये बोलेंगे भी नहीं क्योंकि आपको वोट नहीं मिलेगा. तो आप कमेटी बनाइए, कमेटी डिले करते रहेगा, बाद में देगा, आप मानेंगे नहीं, फिर से वही चीज़ होगा. ये करते करते हम लोग थक जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, थक जाएंगे, तब फिर से यही चलेगा. ये पूरा प्लानिंग है. लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, एक दिन पाप लगेगा इन लोगों को. पाप लगेगा कि एक गरीब गांव के आदिवासी जनजाति को ऐसा रखा गया. पाप लगेगा इनको. স্যার, আমরা দেখতে পাই যে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে কিছু বিষয় বর্তমানে উঠে আসে, সেখানে আমরা এমডিসি সদাগর গোলই বা আপনাদের একজন নেতৃত্ব রয়েছেন ডেভিড মুরাসিং, তাদেরকে দেখতে পাই যে তারা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যে যারা এমএলএ রয়েছে তারা দলের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন. এই বিষয়টি কি রয়েছে বা এর কতটুকু সত্যতা আছে? मुरा अपना घर का आदमी है, मुरा से मेरा बात होते ही रहता है. उनका कुछ भी ग्रीवियंस है मैं देख लूँगा, ये कोई इम्पोर्टेंट इशू नहीं है. और सौदागर को भी मैंने ही ओमपी से अपने हाथ से चुन के, सौदागर तो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था. सौदागर को भी मैंने ही आइडेंटिफाई करके, मैंने ही उसको चांस दिया, मैंने ही उसके लिए कैंपेन किया और मैंने ही उसको कैंपेन करके जिताया भी है ओमपी से. तो वो अपना ही लड़का है. हमारे सब लड़के लोग हैं. फैमिली में कभी कभी किसी का दिल टूटता है, किसी का दिल खुश होता है, लेकिन फैमिली में बैठकर सब ठीक हो जाएगा. और हाँ, मैंने आज अपने स्पीच में भी बोला कि हमारे MDCs, EMs और MLAs को काला चश्मा और आईफोन यूज़ करना कम करना चाहिए. और ये मत भूलना चाहिए कि ये लोग राजा या ठाकुर के बेटे नहीं हैं. गांव से आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं और इतना जल्दी अपने लोगों को भूलने से इमेज उनका भी ख़राब होता है, मेरा भी ख़राब होता है. और मैं अपने लोगों के सामने अपना इमेज और अपना क्रेडिबिलिटी नीचे होने नहीं दूंगा. तो मैंने उनको भी कह दिया है कि आप लाइन में आकर काम कीजिए. और रहा बात डेविड का, मैंने थोड़े दिन पहले ही बात किया, परसों ही बात किया.
वो कुछ ইস্যু নেই। স্যার ডেভিড মুরা সিং আরও একটা বিষয় বলেছিল, তিনি বলেছিলেন যে পাহাড়ে যারা তিপ্রাসা রয়েছে তারা খেতে পাচ্ছে না, কিন্তু যারা ইএম डेविड मुरा सिंह के खिलाफ जब इलेक्शन ख़त्म हुआ उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाया गया ड्रग्स का, फॉल्स चार्जेस, मैं उनके साथ खड़ा रहा। उसका पूरा लीगल फीस, उसके घर का जो प्रॉब्लम था, मैंने हेल्प किया। वो कभी कभी उनको भी दिल छोटा होता है, दुखता है, लेकिन डेविड भी जानता है और सौदागर भी जानता है कि आई लव देम, और उनको मेरे संग कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकल लेवल में कहीं में डिस्प्यूट हो सकता है, वो भी मैं ठीक कर दूंगा। मेरे संग उनका किसी का प्रॉब्लम नहीं है। স্যার তবে যে বিষয়টি বলছে যে যারা ইএম রয়েছে বা এমএলএরা वो রয়েছে, मैंने कहा ना, लोकल लेवल में हो सकता है पूजा। क्या जितेंद्र चौधरी और मानी बाबू के लोकल लेवल में प्रॉब्लम नहीं था? होता है। कांग्रेस में कम प्रॉब्लम है क्या? मैं तो कांग्रेस में था, लोकल लेवल में कितना प्रॉब्लम होता है। बीजेपी में क्या अभी प्रॉब्लम नहीं है? जब मानिक शाह को बनाया था तो एक मंथ कुर्सी निकाल के सब फेंकने लगा। ये लोकल लेवल में होता है, लेकिन जब तक इनको मेरे संग प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी इनके साथ कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसको हैंडल कर दूंगा। যিনি এমডিসি রয়েছেন হংস কুমার ত্রিপুরা, আমরা দেখতে পাই উনার সাথে বা উনি এডিসির বিরোধী দলনেতা ছিলেন এক সময় এবং রেজিগনেশনের পর তিনি ত্রিপুরা মথায় যোগদান করেন। উনার আমরা বর্তমানে রাজনীতিতে কোনো অ্যাক্টিভিটিস দেখতে পাচ্ছি না, এবং এমনও বিষয় শোনা যাচ্ছে তিনি বিজেপিতে আবারও গিয়ে যোগদান করতে পারেন, এবং এমনও কিছু বিষয় শোনা যাচ্ছে এমডিসি সদাগর কলইও নাকি বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন। তাছাড়াও আরও 6 জন এমডিসির বিজেপিতে যোগদানের কথা শোনা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। স্যার तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं প্রিয় নেতৃত্ব ডেভিড মুরা সিং, मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे भी खबर मिला है कि बीजेपी डायरेक्टली कोई बीजेपी में नहीं लाएगा। वो जैसे 2001 से 2005 में पैसा देकर फंड करके एक नया पार्टी शुरू करेगा जो और भी ज़ोर से तिप्रालैंड बोलेगा और मोथा को कमज़ोर करने, वो पुराना उनका खेल है, ऑपरेशन लोटस जो बोलते हैं। लेकिन यहाँ में डायरेक्टली बीजेपी में नहीं लाएगा क्योंकि पब्लिक नहीं चाहती बीजेपी कभी। मुझे नहीं लगता कि कोई जाएगा, आपने जिनका नाम लिया नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, अब सुन लीजिए मेरा बात। और अगर जाना भी है तो जाने दीजिए ना, जब तक प्रद्योत विक्रम माणिक्य नहीं जाएगा आप सबको ले जाइए, पब्लिक मेरे साथ है। और जब तक मैं अपना कमिटमेंट कि मैं बिना ग्रेटर तिप्रालैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर मैं गवर्नमेंट में नहीं बैठूंगा, मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक आप जितना को भी लेना चाहे लोकसभा में तो उनको मेरे खिलाफ ही फाइट करना पड़ेगा ना। और मुझे नाराज़ करके और हमारे जनता को, कम्युनिटी को नाराज़ करके आप 5, 6, 10, 15, 20, 25 लीडर को लेने से क्या मिलेगा? आप सिर्फ लीडर्स को लेंगे लेकिन पब्लिक को नहीं ले रहे ना आप, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और बीजेपी में पहले से इतने उनके बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको स्पेस नहीं मिल रहा है, वो तिप्रा मोथा के लीडर्स को लेके जाएंगे तो जो लीडर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं वही गलती जो IPFT ने किया था, NC देव वर्मा गवर्नमेंट में बैठ गए बिना कुछ अग्रीमेंट साइन करके, 5 साल तक मंत्री बन के रहे, मेवाड़ रहा, प्रेम कुमार रियांग रहा, लेकिन तिप्रा साहब को कुछ नहीं मिला, इसके लिए IPFT ख़त्म हो गया। अगर वो लोग ऑपोजिशन में बैठते क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला तो मैं आज बोल रहा हूँ कि तिप्रा मोथा कहीं नहीं होता, IPFT कहीं होता। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि इनको मंत्रिमंडल में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लोगों के लिए बात करना कम इम्पोर्टेंट है। तो अगर मंत्री बनने के लिए ही मैंने तिप्रा मोथा शुरू किया होता तो मैं डायरेक्टली बीजेपी ज्वाइन कर लेता या मैं कांग्रेस ही नहीं छोड़ता, आराम से कुछ तो MP तो मिल जाता मुझे। लेकिन मुझे लगा कि हमें अपने कम्युनिटी को कुछ देना है। 70 साल से बहुत सफ़र है हम लोगों का, बहुत प्रॉब्लम्स है, उनको कुछ देना है, इसके लिए मैं आया हूँ। अगर पैसे ही कमाना होता तो इलेक्शन के टाइम ही अलायंस कर लेता बीजेपी के साथ। इलेक्शन में तो मुफ्त का तो कोई इलेक्शन फाइट नहीं करता, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा, और मैं जब तक अपने लोगों को कुछ नहीं दूँ मैं अपना क्रेडिबिलिटी खोना नहीं चाहता, बस। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझसे बात भी कर रहे हैं। किसी का दिल दुखता है, किसी का दिल होता। होंशो का नाम लिया, होंशो बीजेपी में था, उससे पहले आप लोग जानते नहीं, मेरे संग कांग्रेस में था होंशो।
होंगशु बीजेपी से मेरे पास आया है, इलेक्शन फाइट किया, नहीं जीता, शंभू चाकमा के अगेंस्ट हारा, बहुत वायलेंट इलेक्शन हुआ। अब होंगशु से भी मैंने बात किया, होंगशु भी कहता है कि महाराज मैं थका हूँ लेकिन मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे थोड़ा दिन आराम करने दो। तो आराम करने दो, मैं तो हूँ ना। और त्रिपुरा से लोग मुझे देखकर सामने आ रहे हैं, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता। ये मूवमेंट है। मूवमेंट में अगर ऊपर का लीडर ठीक है और नीचे के लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो बीच का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। স্যার, উপরের লিডার যে বিষয়টা বললেন তার মধ্যে পড়ে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা, উনি নাকি উপমুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন, এমনটাও পোস্ট রয়েছে এবং আপনাদেরই সক্রিয় নেতৃত্বের মাধ্যমে পোস্ট করা কি রয়েছে? না, Animesh Debarma will not take any position until we do not get anything in writing, Greater Tripura land for constitutional solution in writing. ये मेरा बात क्लियर है कि बिना अपने कम्युनिटी को कुछ देकर कोई भी एमएलए त्रिपुरा मोथा से मंत्री नहीं बनेगा। ये अनिमेश के खिलाफ षड्यंत्र है, उसको नीचे दिखाने का, उसको कमज़ोर करने का षड्यंत्र है। अनिमेश ने खुद मुझे कहा है कि आई विल नॉट टेक एनी पोस्ट टिल आई डोंट गेट समथिंग फॉर माई कम्युनिटी। ये बात एक व्यक्ति का नहीं है। तो मैं आ सकता हूँ कल डिप्टी सीएम बन के, अनिमेश क्यों, मैं बन सकता हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं चलता। हमको अपने लोगों को कुछ देना है। और डिप्टी सीएम बन के या एमपी बन के कैसे शक्ल दिखाओगे अपने लोगों को कि इतना बड़ा बात किया, आप आंदोलन किया, कितने लोगों ने सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया, और बाद में अपने स्वार्थ के लिए हमने गवर्नमेंट में बैठ गए? नहीं हो सकता ये। স্যার, জনগণের মধ্যে একটা প্রশ্ন, আপনি একরকম বক্তব্য রাখছেন এবং আপনাদের দলে যারা নেতৃত্বরা রয়েছে তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্নভাবে পোস্ট দেখা যাচ্ছে, তো সেখানে প্রত্যেকের মধ্যে এমনটাই জেগে উঠছে যে হয়তোবা ত্রিপুরা মোথার যারা নেতৃত্বরা রয়েছেন তাদের মধ্যে একটা গোষ্ঠীকোন্দল রয়েছে বা দলের মধ্যেই সমস্যা রয়েছে, সেই বিষয়টা একটু देखो, उतावलापन तो सबके पास रहता है। आज तक कोई आंचलिक पार्टी ने ना न्यूट्रल रहा नहीं, ना कांग्रेस सीपीएम के साथ, ना बीजेपी के साथ। तो न्यूट्रल रहने में भी बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। तो यही बात मैंने बीजेपी को भी बोल दिया है कि अगर आप हमारा सोल्यूशन नहीं देना चाहते तो हमको भी ऑपोजिशन के संग बैठकर बात करना पड़ेगा। और जिस दिन वो बात होगा उस दिन पूरा क्लियर हो जाएगा कौन किसके साइड में है। স্যার, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि हमको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में एनडीए है और यूपीए है, बीच में कोई नहीं है। जो भी है वो इधर उधर लास्ट में आ जाएगा। तो हमको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर एनडीए हमें सोल्यूशन नहीं देती तो यूपीए के संग हमको बैठना पड़ेगा। স্যার, একটা প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিধানসভা নির্বাচন দেখতে পাই, তারপর থেকেই ধনপুর যে বিধানসভা কেন্দ্রটি রয়েছে তা অভিভাবকহীন বললেই চলে, এখনো পর্যন্ত উপনির্বাচন হচ্ছে না। धनपुर में 1-to-1 करने ही से ही सबसे अच्छा सोल्यूशन निकलेगा, और लोकसभा में भी 1-to-1 करने से ही सबसे अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। কি চাইছেন আপনারা? आप इंटेलिजेंट है, पब्लिक इंटेलिजेंट है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, लेकिन धनपुर में 1:1 होना चाहिए एंड लोकसभा में भी दोनों सीट में 1:1 होना चाहिए। अब जिनको जो समझना समझ ले, लेकिन ये स्टेटमेंट मैं फुल अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ, हमको हल्का ना ले, 1:1 ही होगा। और कहीं मैं सपोर्ट करूँगा, कहीं में मुझे सपोर्ट मिलेगा। सर, आज माधवपुर मंच में हमने देखा कि आप विलेज काउंसिल इलेक्शन के बारे में कुछ बोला, क्या था वो? हमारा मैटर गया था कोर्ट में। द गवर्नमेंट का जो अटॉर्नी जनरल था वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाया, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि मंडे को ऑर्डर निकलेगा और वेडनेसडे को कंटेम्प्ट ऑर्डर हमको फाइल करना है हाई कोर्ट में। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो जल्द से जल्द वो मैटर को सुनेगा और ऑर्डर भी पास करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं ये विलेज काउंसिल इलेक्शन कराया। और कंटेम्प्ट ऑर्डर में हम लोग चीफ सेक्रेटरी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटरी को भी पार्टी बनाकर कोर्ट में ड्रैग करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं कोर्ट का डायरेक्टिव को माना है।
অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু বেশ কিছু যে কোশ্চেনগুলি উঠে আসছিল, জনগণের মধ্যে যে প্রশ্ন উঠে আসছিল, সেগুলোকে নিয়ে খোলাসা করার চেষ্টা করেছি আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আমাদের সাথে রয়েছেন ত্রিপুরা মথার সুপ্রিমো। একেবারেই শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা রাখবেন তিনি, আমরা শুনে নেব। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट दे शुड बी शांति, पीस। जो भी हमारा एजिटेशन होगा, मैं बहुत क्लियर हूँ कि ये एजिटेशन अपने अधिकार के लिए होना चाहिए, कोई कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं होना चाहिए, कोई धर्म को टारगेट करके नहीं होना चाहिए। तो ये जो एजिटेशन होगा, इसमें हम वो IPFT जैसा रास्ता नहीं निकालना चाहते, जहाँ में ट्राइबल बंगाली के बीच में तनाव हो, क्रिश्चियन हिंदू, मुस्लिम हिंदू, इसमें तनाव हो। हमको अपना अधिकार शांति से रखना है, लेकिन प्रेशर डाल के रखना है। और हमें बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि असली मुद्दा जो ज़मीन का है, जो एम्पावरमेंट का है, जो फंडिंग का है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का है, उसको छोड़कर हम हिंदू, मुसलमान या ट्राइबल बंगाली करने की कोशिश करें। ये लोग चाहते हैं कि हम असली इशू से दूर होकर नफ़रत की राजनीति करें। मैं नफ़रत की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जिस दिन त्रिपुरा का इंडिजिनस तिप्रासा एंड द बंगालीज कम टुगेदर, वी कैन मेक त्रिपुरा, वी कैन डेवलप त्रिपुरा, एंड वी कैन ऑल्सो सेव त्रिपुरा एज द होल, एंड वी कैन ऑल्सो सेव त्रिपुरा फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। बांग्लादेश में भी सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में भी बहुत फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, और शेख हसीना के बाद भी अगर कुछ हुआ वहाँ में, तो त्रिपुरा में फिर से इन्फ्लक्स होगा, फिर से प्रॉब्लम्स आएंगे। उस समय सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा? जो हम लोग इंडियन सिटीजन से, लाइक यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये समय नहीं है कि हम एक दूसरे से फाइट करें, ये समय है कि आप भी हमारी डिमांड को समर्थन करें, और हम भी समझें कि आपने हमें डिनाई नहीं किया, कुछ नेता लोग ने किया, क्योंकि उनको उनका दुकान चलाना था। अगर ये बात क्लियर हो जाता है, देन वी शुड लुक एट श्रेष्ठ त्रिपुरा। बट अगर नहीं हुआ तो त्रिपुरा को शेष करने के लिए बहुत लोग हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और मेरा मैसेज यही है कि बहुत यंगस्टर्स लोग ने अपना माइंड मेकअप पहले से कर दिया कि मैं बुरा इंसान हूँ। ठीक है, अपने लोगों के बारे बात करने के लिए मैं बुरा हूँ, लेकिन आप अपने लीडर को देख लीजिए। उन्होंने आपके लिए तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे बुरा बोलकर आपका वोट अपने लिए लिया। तो आपको भी डिसाइड करना है कि एक आदमी ऑनेस्ट है और सिंसियर है, हाँ, लेकिन जो बात बोलता कभी कभी कड़वा लगता है, लेकिन कभी कभी कड़वा सुनना भी चाहिए, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার গুরুত্বপূর্ণ সময় থেকে সময় দেওয়ার জন্য। এখনকার মতো আমাদের এই অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী আপডেটস দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার।